जो दिखेगा वो बिकेगा, लेकिन जो अच्छा दिखेगा वो ज्यादा बिकेगा। कि सात्विकों ने जो एक इनिशिएटिव लिया कि गुड़ चना ये हमारे ट्रेडिशन में बहुत सालों से है, लेकिन जिस तरह से आपने इस प्रोडक्ट को डेवलप किया है, जिस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। एंड इसकी बदौलत आप देखिए आपको एक बहुत अच्छा मार्केट मिला। Hi everyone, good afternoon. Welcome to the new episode of Live Satviko Talks, Scaling Brands from India. Hi Amit ji, good afternoon. How are you? Good afternoon, dear. I am too good. What about you? I'm doing very well. Thank you so much. So really appreciate that you have accepted our invitation to be on the talks. So thank you so much for that. My pleasure, my pleasure. Thank you so much for having me here. Awesome. So, so everyone, I'll introduce Amit ji to you all, and then accordingly we can start with the session. So we have Mr. Amit Mulani today from Surat with us. He is the MD of Atlantico International and a professional trainer at Bharat Udan Mission. He has a wonderful experience of 7 years into training entrepreneurs and professionals into import and export. He himself is an exporter from India, and he is also an assistant professor in various engineering colleges. He completed his civil engineering from Gujarat and a DLC in foreign trade. So, hi Amitji. So, I mean, since you have done your civil engineering and worked as a professor, so what inspired you to enter into the food business and training entrepreneurs? Thank you so much for my introduction, lovely introduction, and definitely I am so much happy to connect you with the Satviko mostly because I have seen the interview of Prasunji, and I was so impressed with the idea what they have actually started with, and definitely बहुत टाइम से मेरा ये इच्छा थी कि मैं कभी सात्विकों की प्रोडक्ट को डेफिनेटली चखूंगा, लेकिन बाय गॉड ग्रेस हम कोई प्लेटफॉर्म से मिल गए एंड देन राइट नाउ वी आर हियर, सो I'm so happy. Sure. Okay, actually, Dhavalji, I have started my journey in engineering college only when I was in civil engineering branch, but obvious. So I have studied in GEC Surat, Government Engineering College Surat, and in the last year, I found myself that कि ये जो मेरा इंटरेस्ट है ना वो इसमें इंजीनियरिंग में नहीं है। मुझे लगा कि मैं कोई और काम के लिए शायद तैयार हूँ एंड शायद ये मेरा इंटरेस्टिंग एरिया नहीं है बिकॉज इन 2004 व्हेन आई हैव टेकन द एडमिशन इन इंजीनियरिंग कॉलेज, तो उस वक्त क्या किसी ने धक्का दिया था कि भाई इंजीनियरिंग कर लो, पता नहीं था क्या करना है। बट इन द लास्ट ईयर आई फाउंड दैट कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो इंटरनेशनली हो, मतलब आप दुनिया घूमो और फिर पैसा भी कमाओ। And then I have started my journey with kind of the ventures. Initially, there are unsuccessful ventures I have started, and we have closed it. Like Raddiwala.com, we have started in 2010, जब हम लोकल हाउस होल्ड से पस्ती वगैरह सब इकट्ठा करते थे एंड ये ऑयल के जो डिब्बे होते हैं, एंड देन आफ्टर वी आर सप्लाइंग टू द डिफरेंट इंडस्ट्री, but due to some unavoidable circumstances I have to shut it out. And but obvious then after we have started with the stevia product, stevia जो नेचुरल स्वीटनर लीफ है, Right. बट उसके अंदर भी मार्केट अप्रोच इतना अच्छा नहीं मिला। एंड देन आफ्टर वी केम अक्रॉस विद द डिफरेंट कार एसेसरीज प्रोडक्ट जिनका हमारा मैन्युफैक्चरिंग का भी कुछ प्लान था, तो बहुत सारे अलग अलग वेंचर्स किए। बट फाइनली मुझे ऐसा लगा कि जब मैं इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना चाहता हूँ तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज पर्टिकुलर फोकसेबल थिंग एंड मुझे इसको आगे लेके जाना चाहिए। एंड देन वी Sure. हैव started working and started studying inside the export and import only. So in 2012 we came across with the different parameters of export and import, and in 2014 we have started our company. Okay. So Dhaval, my first product was definitely male contraceptive product, and we have started with that. But after some time, after customers' demand, we come with the number of different medical products. So जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त हमें मेडिकल सर्जिकल डिस्पोजेबल के बारे में कुछ पता नहीं था, बट आफ्टर 1 and 2 years हम बहुत सारी डिफरेंट मेडिकल सर्जिकल डिस्पोजेबल प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आए। Okay. तो माय कंपनी Atlantico International is basically dealing with the medical surgical disposable products since last 8 years. Okay. बट रिसेंटली 2 years अगो हमने फूड सेक्टर के अंदर एंट्री की, एंड फूड सेक्टर के अंदर मेनली दो प्रोडक्ट के साथ हमने एंट्री की। एक मोरिंगा बेस्ड जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होता है तो उनकी प्रिपरेशंस, एंड सेकंड नंबर पे
नेचुरल चॉकलेट ड्रिंक. इट इज अ काइंड ऑफ मेल्टेड चॉकलेट ड्रिंक. हालांकि Sure. सूरत के अंदर लोग इसको कोको के नाम से जानते हैं. एंड Mm-hmm. ये बहुत प्रचलित है यहाँ पे. ऑल ओवर इंडिया में ये नहीं मिलता है आपको कहीं पे भी. अगर Mm-hmm. मिलेगा तो माइलो, नेस्ले वगैरह मिलता है, लेकिन ये इतना थिकर नहीं होता है जितना ये कोको होता है. सो Mm-hmm. दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट वी हैव सिलेक्टेड, बिकॉज ये बहुत ही वी कैन से इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है. एंड बट ऑब्वियस कि इसको लोग जानते नहीं है. सो Sure. वी हैव स्टार्टेड विद इट. यस, आई एम डेफिनेटली clarified that कि we are not manufacturer of any kind of the product. We are a Mm-hmm. pure traders. And मेरा जो कंपनी है वो मर्चेंडाइज ट्रेडर है. तो बट ऑब्वियस हम जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं वो मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर के तौर पे करते हैं. एंड डेफिनेटली जो भी प्रोडक्ट हमने स्टार्ट किया था उसमें खास तौर पे फूड प्रोडक्ट के जब काम हमने चालू किया, तो अलग अलग कंट्री के पर्सपेक्टिव को चेक करके और उसकी डिमांड को चेक करके हमने बहुत सारी चीजें सीखी. बट येट वी आर इन द लर्निंग फेज फॉर द फूड प्रोडक्ट्स. Sure. But we got lots of experience through the international trade, because I have participated in Abu Dhabi Sial Food. We have Mm-hmm. participated in that Gulf Food 2020. You know about, I think, that Indus Food in Delhi, Yeah. Yeah. and it is purely for the export purpose only. And we were Right. been participated in this all the different kind of the trade fair. So बहुत अच्छा experience रहा लोगों के साथ connect होने का और international buyer के साथ connect होने का. So Right. definitely जब ट्रेनिंग की बात आती है तो एक्चुअली आई एम प्योर बिजनेस पर्सन एंड डूइंग द एक्सपोर्ट ओनली. बट व्हाट हैपेंड व्हेन वी हैव स्टार्टेड द कंपनी ना, तो पहले जब आपका एक बार एक्सपोर्ट होता है तो लोग आपके पास आना चालू करते हैं कि भैया आपने कैसे ये कर लिया, जी. आप हमें भी बताइए, वी वांट टू डू द एक्सपोर्ट एंड एटसेट्रा. या सो इट वाज हैपन इन 2015 दैट कि पीपल केम टू अस दैट कि भाई हम भी हमारी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप सक्सेसफुली कर रहे हैं तो अपने प्लेटफॉर्म से हमें भी चांस दीजिए. Right. बट यू नो दैट कि देखिए आप कोई एक सेक्टर की जब प्रोडक्ट में काम करते होते हैं ना, तो बट ऑब्वियस नंबर ऑफ सेक्टर फोकस नहीं कर सकते. यू Right. कैन नॉट डू वर्क साइमल्टेनियसली विद द फूड प्रोडक्ट एंड विद द स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट, और वी कैन से विद द मेडिकल प्रोडक्ट, बिकॉज आप जब फोकस्ड होते हैं ना तो यू हैव टू वर्क इन द वन डोमेन ओनली. अदरवाइज क्या होता है Absolutely. कि आप अपने डोमेन के बाहर अगर काम करेंगे तो आप सक्सेस इतना पा नहीं पाएंगे, बिकॉज इट True. इज क्वाइट डिफिकल्ट टू कॉप अप ऑल द थिंग्स इन Mm-hmm. द डिफरेंट फील्ड. या तो वी सेड स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कि सर हम आपकी प्रोडक्ट के ऊपर अभी काम नहीं कर सकते, बिकॉज अल्टीमेटली हमारे पास इतना स्कोप नहीं है. सो पीपल सेड Sure. दैट ओके, तो आप जो करते हो हमको सिखाइए क्या करते हैं. एंड यस, मुझे ये मौका मिला कि आई वाज प्रोफेसर इन इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर 7 years. सो मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि अगर मैं लोगों को कनेक्ट करूंगा और उनको इन्फॉर्मेशन दूंगा तो लोगों को इजीली वो एब्जॉर्ब होगा. Right. And people have accepted my language, people have accepted our thoroughly program, and till the date we have completed 56 batches and more than Wow. 1100 participants has been done the course. So Oh, definitely wow. there are several companies who are doing the export right now from that Mm-hmm. participants and alumni. So I'm so happy that कि मैंने कुछ value addition लोगों की life में किया related to export. And मेरा particular purpose एक ही है कि maximum Indian entrepreneurs export के अंदर enter हो एंड इंडियन प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड पहुंचाए, बिकॉज Great. डेफिनेटली वी हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, बट शायद हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अभी इतना दिखे नहीं है. जब दिखना चालू होंगे तो True. बिकना चालू जरूर होंगे. True. True. Great. I mean, you have an inspiring story. And I mean, I believe you are already exporting to countries like UAE, Australia, Canada, and UK. So, based on your Yes, true. into food business of last 2 years and plus in these international markets, how do you see the changing food landscape in these geographies? डेफिनेटली यू सी फूड ये एक ऐसा मतलब प्रोडक्ट है, ऐसा कमोडिटी है जो हर एक की लाइफ के साथ बट ऑब्वियस जुड़ा हुआ होता है. ठीक है, जी. देखिए बेसिकली अगर मैं बात करूं मेरे एक्सपीरियंस की, तो राइट नाउ वी आर वर्किंग इन अ टू डिफरेंट प्रोडक्ट, जिसमें मैंने आपको बताया एक मोरिंगा बेस्ड प्रोडक्ट है, दूसरा बेवरेज बेस्ड प्रोडक्ट है. Right. Recently, 3 months ago, we have prepared one instant mix sharbat. Okay. There are two flavor, lemon and we can say funnel seed. Mm-hmm. अब ये दोनों प्रोडक्ट ऐसी है जो 100% नेचुरल है. अगर मैं Mm-hmm. कोको की बात करूं तो कोको के अंदर भी कहीं ना कहीं हमने ये फोकस किया है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एकदम नेचुरल हो और उसको एक ऐसा शेल्फ लाइफ मिले जिसे कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो भी कोई आगे जाके प्रॉब्लम ना हो. एंड डेफिनेटली मोरिंगा 100% नेचुरल पहले से ही है, तो इसके अंदर हम दो तरह से काम कर रहे हैं. मोरिंगा के अंदर मोरिंगा प्रिपरेशन फूड्स, जिसके अंदर कैप्सूल्स तैयार करते हैं, और उसके अलावा उनकी कुछ ड्रिंक्स हमने तैयार किए हैं जिनको आपको वाटर के अंदर मिक्स करना है एंड यू कैन सिप इट. यस, एंड डेफिनेटली दूसरा है बेस्ड मोरिंगा बेस्ड पाउडर. सो
अगर हम बात करें हमारे एग्जिस्टिंग मार्केट के हिसाब से, तो आप देखिए, पहली बात तो ये कि ये जितने भी कंट्री है, जैसे कि यूएई हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, इंडियन पॉपुलेशन इज मोर देन 58 लाख पीपल इन दिस Got फोर it. कंट्री ओनली. इट इज Mhm. 60 लाख. अब यू Mhm. सी, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये कि जितने भी इंडियंस आपके इस कंट्री के अंदर अवेलेबल है ना, एक तो वो आपके लिए ट्रेड एजेंट हो गए. Right. आप उसको एक ये पर्सपेक्टिव से देखिए कि ये आपके लिए ट्रेड एजेंट है, Right. क्योंकि ये वो बंदे हैं जो इंडियन फूड को बहुत अच्छे से जानते हैं, इनको एथनिक फूड का पता है, एंड ये आपके लिए वहां पे एक मार्केट रिप्रेजेंटेटर है. Sure. दूसरी चीज पे ऊपर अगर हम बात करें, तो जितने भी लोग ये फॉरेन कंट्रीज में आज ऑलरेडी रेसिडेंट्स हैं, उनके कुछ स्टोर्स है या तो उनकी कुछ चैनल्स है जो ये फूड के अंदर चलाते हैं. एंड देयर आर सेवरल पीपल. आप यूएस के अंदर ऑलरेडी एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको इसका अनुभव है. तो जब हम हमारी प्रोडक्ट को इनके थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली वहां के जो लोकल फॉरेनर्स है, मतलब वहां के जो लोकल रेसिडेंट्स है, शायद ये भी आज नहीं तो कल हमारी जो प्रोडक्ट्स है उसको परचेज करेंगे, उसको एक बार Mhm. टेस्ट करेंगे, तो उसको डेफिनेटली उसकी हैबिट होगी, एंड फ्यूचर के अंदर वो धीरे धीरे उसका यूज करना चालू करेंगे. आप देखिए, आज से 20-25 साल पहले शायद जितना पिज्जा आज हम लोग खाते हैं, उतना शायद उस वक्त पता भी नहीं था कि पिज्जा क्या होता है. बट Absolutely. वी हैव एक्सेप्टेड द फॉरेन फूड, वी कैन से वेस्टर्न फूड, एंड डेफिनेटली हमारे पास ऐसे बहुत एथनिक फूड है जो अल्टीमेटली वर्ल्ड एक्सेप्ट करेगी. बट इसके लिए उसको प्रेजेंट होना जरूरी है. तो मैंने आपको Right. जैसे बताया कि सात्विकों ने जो एक इनिशिएटिव लिया कि गुड़ चना ये हमारे ट्रेडिशन में बहुत सालों से है, लेकिन जिस Mhm. तरह से आपने इस प्रोडक्ट को डेवलप किया है, जिस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया, इट इज वेरी ब्यूटीफुल. एंड इसकी बदौलत आप देखिए, आपको एक बहुत अच्छा मार्केट मिला. अभी मान Mhm. लीजिए कि हम इंडियन कंज्यूमर को कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब एक इंडियन कंज्यूमर किसी एक फॉरेनर से कनेक्ट करता है ना, तो हमारी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ये डोमेन में भी एंटर होती है और हम उन लोगों को भी ये प्रोडक्ट बेच पाएंगे. लेकिन यस, True. दिस इज व्हाट द वर्क ऑफ पेशेंट ओनली. इसके अंदर आप मतलब ऐसा सोचेंगे कि ये ओवरनाइट होगा, तो इट विल नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. डेफिनेटली यू हैव टू वेट एंड वॉच. धीरे 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 आप जैसे मार्केटिंग करेंगे, एंड आप ही के रिप्रेजेंटेटिव जो इंडियंस है फॉरेन में, वो जब अपने फॉरेनर फ्रेंड्स जो है उनको कनेक्ट करेंगे, डेफिनेटली मुझे लगता है कि इन फ्यूचर हमारी इंडियन प्रोडक्ट घर घर में होगी. ये पक्की बात है. Right. Right. तो डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि दीज आर द ओनली कंट्री आई हैव टेकन द नेम. अदर देन दैट देयर आर, वी कैन से, नंबर ऑफ कंट्रीज जहां पे इंडियंस है, और ये Sure. हमारी फूड प्रोडक्ट को डेफिनेटली लोकल मार्केट के अंदर बहुत अच्छे से आगे मूव कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं. Mhm. So, I mean, as you have already been into this business for more than 7 years now, and being the founder of Atlantico International, I mean, you have built it from scratch. So, where do you see Atlantico International in next 5 years? एक्चुअली मॉनेटरी अगर हम देखने जाए, मॉनेटरी तो मैंने अभी तक कोई ऐसा कोई गोल नहीं बनाया कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा. बट यस, अगर मैं बात करूं एटलांटिको इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से, राइट नाउ वी आर ऑलरेडी सेट विद द मेडिकल सर्जिकल डिस्पोजेबल प्रोडक्ट एंड वी आर मूविंग वेरी इफेक्टिवली. सो अभी मैं उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ. मेरा मेन फोकस है फूड प्रोडक्ट के अंदर, बिकॉज मुझे लगता है कि इंडिया विल बिकम पायोनियर इन फूड प्रोडक्ट. देखिए, आप सब जानते हैं कि अगर चाइना की कोई प्रोडक्ट वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है ना, तो वो फूड प्रोडक्ट है, Mhm. बिकॉज उसमें कोई कंपटीशन नहीं है. एंड Got it. वी आर द पीपल एज अ सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. देखिए, हमारी अलग अलग कम्युनिटी की जो वर्सेटिलिटी है फूड के अंदर प्रिपरेशन की, ये अमेजिंग है, अमेजिंग. Mhm. फॉरेनर का कोई भी बंदा जब इंडिया में आता है और वो स्ट्रीट फूड चखता है, तो डेफिनेटली उसके मुंह से एक बात निकलती है कि वाह, इट्स अमेजिंग. और Mhm. ये फूड प्रिपरेशन को अब धीरे धीरे हम वर्ल्ड वाइड पहुंचाना चालू किया है. जैसे Right. कि मान लीजिए मैं गुजराती हूँ, तो मेरा ढोकला, फाफड़ा एंड पाव भाजी वगैरह जो होता है, तो आप जानते हैं कि ये सारी प्रोडक्ट अभी तक हम यहाँ से बाहर नहीं बेच सकते थे, लेकिन नाउ वी कैन प्रिपेयर दिस फूड एज अ वी कैन से ओपन एंड ईट फूड, और वी कैन से प्रिपेयर्ड फूड. एंड डेफिनेटली उसकी बदौलत कहीं ना कहीं हम वर्ल्ड वाइड अपने फूड्स को पहुंचा पाए हैं. एंड मुझे ये लगता है कि अगले आने वाले 5 सालों के अंदर शायद दुनिया के ऑलमोस्ट कंट्री के अंदर इंडियन फूड जो है, जो रेडी टू ईट फूड है, रेडी टू प्रिपेयर फूड है, डेफिनेटली हम उसके अंदर बहुत अच्छा काम करेंगे. एंड Mhm. अगर मैं बात करूं एटलांटिको के गोल की नेक्स्ट 5 ईयर, तो डेफिनेटली मेरा ये फोकस है कि आने वाले 5 सालों के अंदर हम मिनिमम 20 कंट्रीज के अंदर अपना फुट होल्ड रखेंगे, और हमारे प्रोडक्ट जो उनको वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे. और गोल के बेस पे मैंने जो आपको बताया, मेनली हमारा बेवरेज प्रोडक्ट एंड मोरिंगा प्रोडक्ट जो मेनली हमारा फोकस है, और उसी की प्रिपरेशंस को हम आगे फर्दर मूव करेंगे. Great. Great. So, I mean, एंड यस, वी आर लर्निंग देयर, yeah, 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 yeah. एंड वी आर इन द लर्निंग फेज, बिकॉज हमें इतना
शायद आपके जितना मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, बट यस वी आर लर्निंग नंबर ऑफ थिंग्स. So, Amitji, what I believe is, I think learning is a continuous process, and I think that will happen. I mean, going forward every day, and I mean every year. So, I think, irrespective of Yes, true. experience, at the end of the day, it is all about learning. I mean, what I would also say is, Yes, true, true. beat the world's largest corporates also, they also learn every day new, right? So, I think Every day. continuous process, and I mean, It is the fuel. It is the fuel for us, and definitely it is a motivation for us. right, right. Learning is a motivation. Yeah. So, I mean, since you are already training various entrepreneurs from India, what advice would you like to give them while designing their product or taking their product in the global market while competing with the international brands? Because, of course, people are entering the overseas market with a view to, let's say, not cater to Indian diaspora only, but the local ethnic population also. So, what is your take on that? Definitely. Very good question, Dhaval. Let me give you some basic things to be focused. Like, देखिए, जब भी आप कोई प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं अपने कॉम्पिटिटर के सामने, तो आई हैव बीन विद द सियाल फूड एंड गल्फ फूड, एंड आई एम टेलिंग यू माय फ्रेंड, हमने इंडियन पैवेलियन के अलावा बहुत सारे पैवेलियन घूमे. और आप जानते हैं कि गल्फ फूड के अंदर, दुबई के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वहां पे रिप्रेजेंट होते हैं. तकरीबन 120 कंट्री से ज्यादा जो फूड प्रिपरेशन होती है वो आपको देखने को मिलती है. बट आई एम टेलिंग यू देयर इज नो कंपेरिजन विद इंडियन फूड. आई एम टेलिंग यू. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि और कंट्रीज की जो फूड प्रिपरेशन है वो इस तरह की या उस तरह की है. डेफिनेटली सबका एक अपना टेस्ट होता है, और डेफिनेटली ये टेस्ट जो होता है इसको इम्प्रूव करना, उसको चेंज करना, ये एक टाइम बीइंग प्रोसेस है. बट अगर मैं बात करूं इंडियन फूड जो मैंने यहाँ पे देखा हुआ है गल्फ फूड के अंदर, और उसके अलावा जो रिप्रेजेंटेशन हमारे फूड्स का था, बट ऑब्वियसली इट वाज टू गुड एंड लॉट्स ऑफ पीपल were tasting the products of Indian ethnic foods. या तो डेफिनेटली मुझे ये पहली बात तो ये लगती है कि अगर आप वर्ल्ड वाइड फूड प्रोडक्ट को compete करना चाहते हैं तो सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि what kind of the taste they have, what kind of the taste they preferred. यस. और जब आप कोई प्रोडक्ट को तैयार करते हैं तो बड़ा ऑब्वियस उनके टेस्ट को ध्यान में रख के करना भी जरूरी है. ऐसा नहीं कि आपने अपना प्रोडक्ट तैयार कर दिया और आप ये प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में बेचना चाहते हैं. यस, इंडियन कम्युनिकेशन जो होता है या तो इंडियन जो कम्युनिकेटर्स है ये अलग हो गया पूरा बात. मैं बात कर रहा हूँ जो फॉरेन के रेसिडेंट्स है और जो वहाँ पे लोकल्स है, अगर उनको कनेक्ट करना है तो बट ऑब्वियस आपको उनका टेस्ट देना पड़ेगा. लाइक आई एम गिविंग एन एग्जांपल. कई बार क्या होता है कि अगर हम इंडियन टेस्ट के हिसाब से फूड को प्रिपेयर करते हैं और ये बहुत ज्यादा शुगर से मतलब भरा हुआ है, तो कई बार हमने ये देखा हुआ है कि फॉरेन मार्केट के अंदर लोग इतना शुगर पसंद नहीं करते हैं बिकॉज दे आर मच ऑफेंड वी कैन से विद द शुगर एंड एटसेट्रा. या तो इन दैट केस यू टू अंडरस्टैंड दैट कि उनको कैसा टेस्ट चाहिए. पहली बात तो ये. सेकेंड नंबर पे कॉम्पीट करने के लिए बहुत जरूरी है पैकेजिंग. देखिए, जो दिखेगा वो बिकेगा, लेकिन जो अच्छा दिखेगा वो ज्यादा बिकेगा. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम इंडियन फूड की बात करते हैं ना, तो फूड पैकेजिंग इज टू मच इंपॉर्टेंट. आज आप देखिए, आप कोई भी ब्रांडेड कंपनी का पैकेजिंग देख लीजिए और एक लोकल पैकेजिंग देख लीजिए, अगर क्वालिटी दोनों की सेम होगी ना, फिर भी ब्रांडेड कंपनी के पैकेजिंग को पैसे मिलते हैं बिकॉज ऑफ द पैकेजिंग ओनली. एंड प्राइम मिनिस्टर हैज सेड नंबर ऑफ टाइम दैट कि पैकेजिंग के ऊपर हमको फोकस करना होगा, क्योंकि हम फूड क्वालिटी बहुत अच्छा बनाते हैं लेकिन पैकेजिंग में हम सोचते हैं पैकेजिंग में क्यों पैसा डालने का, खाना तो सबको फूड ही है ना. बट यस, डेफिनेटली प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल मार्केट बिकॉज दे थिंकिंग दैट. या थर्ड नंबर पे जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट, ये है सर्टिफिकेशन. माय फ्रेंड, अगर आप मान लीजिए फॉरेन कंट्री में अपना गुड्स बेचना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी है. आई एम सेइंग यू दैट कि अलग अलग कंट्री के अलग अलग सर्टिफिकेशंस होते हैं. खास तौर पे जब आप फूड प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं तो बट ऑब्वियस हर एक कंट्री में कोई ना कोई सर्टिफिकेशन जरूर होगा. तो वो जो सर्टिफिकेशन है वो आप पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे तो मुझे लगता है कि इट विल बी मोर इजी फॉर यू टू रीच टू द मार्केट, reach to the customer, and people will simply accept your product. Yes. Sure. And ये फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो पैकेजिंग के अंदर ही फूड का जो आपका लेबलिंग है, जिसके अंदर आपका न्यूट्रिशन आपने पुट आउट किया है, दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू सी इन इंडिया दिस इज नॉट द पैटर्न दैट पीपल आर परचेजिंग द प्रोडक्ट एंड दे आर सीइंग द लेबल.
that which True. are the nutritions inside, yeah, Yeah. Yeah. like what is the calorie, what is the protein and cholesterol, etc. But in foreign, definitely they are firstly checking this particular area जहाँ पे आपका न्यूट्रिशन लेवल है, Sure. बिकॉज वो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें कैलोरी कितना है, क्योंकि दे आर कॉन्शियस विद द हेल्थ. Right. एंड दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एक दिन का जो एक कंजम्पशन होता है कि इतना आप मैक्सिमम ले सकते हैं, एक्चुअली उनको ये भी पता है कि कितना लेना चाहिए और उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं. हमारे जैसे नहीं कि पैकेट खोला पूरा खा गए, कुछ पता नहीं कितना कैलोरी, ये क्या कहाँ जाएगा, कैसे शरीर को नुकसान करेगा, नथिंग. So definitely, when we are talking about the foreign market and specifically Western countries culture, definitely we have to comply with those all the things जिससे कि आप अपनी प्रोडक्ट को प्रॉपरली वहां पे प्लेस कर पाए. एंड उसके बाद सबसे जरूरी है मार्केटिंग करना एंड अपनी प्रोडक्ट को उन लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना. क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से तैयार भी कर लिया, लेबलिंग भी कर लिया, सर्टिफिकेशन भी निकाल लिया, लेकिन जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में है, तब तक वो टेस्ट में नहीं आएगा. एंड डेफिनेटली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग, बिल्कुल दो रास्ते हैं. एक तो आप यहाँ से बैठे बैठे मार्केटिंग करें, या तो फिर वहां पे अलग अलग ट्रेड फेयर पे जाके मार्केटिंग करें. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द इनिशियल फेज, जब आप नए नए एक्सपोर्ट के अंदर आ रहे हैं, तो बट ऑब्वियस यू कैन स्टार्ट विद द ऑनलाइन मार्केटिंग बिकॉज वी आर लिविंग इन दैट एरा where social media is very handy. And I'm thinking that we are very we can say very much fortunate that we have the internet handily. Yes. And अगर आपने एडवर्ड्स को यूज कर लिया और सोशल मीडिया को यूज कर लिया, तो यू कैन रीच ऑल ओवर द वर्ल्ड, एवरी पीपल इन एनी कॉर्नर. यस. एंड दूसरी बात, अगर आप मान लीजिए कि वहां के फॉरेन कंट्री के डिफरेंट ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आई एम टेलिंग यू इन द एक्सपोर्ट गवर्नमेंट इज गिविंग लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स. अगर आप पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम के हिसाब से गवर्नमेंट आपको पार्टिसिपेशन का खर्चा भी रिएम्बर्स करके देती है. तो देयर आर सेवरल थिंग्स वी हैव टू फोकस, एंड उसके बेस पे हम अपनी प्रोडक्ट को डेफिनेटली कॉम्पिटिटिंग मार्केट के अंदर फॉरेन कॉम्पिटिटर के सामने बिल्कुल उतार सकते हैं. और यस, वी हैव ऑलवेज अ नीश प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट. तो ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये इतना इजी भी नहीं है. टेस्ट को लोगों तक पहुंचाना ये सबसे बड़ा काम है. Right, right. So, I mean, as you mentioned that you have already come up with various products around Moringa and all. So, how do you see the scope of healthy snacking increasing in the global market? My friend, healthy snacking is but obvious a highly acceptable food in future. देखिए, पैंडेमिक के बाद ना एक सोच पूरी बदल गई. लोगों को ये समझ में आया कि हेल्थ कॉन्शियस होना जरूरी है, एक्सरसाइज होना जरूरी है, एंड देयर आर सेवरल थिंग्स. और जिसके साथ एक ये भी चीज दिमाग में आई कि हेल्दी फूड जो है ये ऑलवेज रिक्वायर्ड है. अब मैं बात करूं हेल्दी स्नैक्स की, तो डेफिनेटली माय फ्रेंड, यू सी, आपके घर में और मेरे घर में, हर एक के घर में कुछ ना कुछ स्नैक्स तो बिल्कुल होता है. यस. या हम वेफर रखते हैं, या सिंग चना रखते हैं, एंड देयर आर सेवरल फूड्स जो हमारे साथ होता है. आज आप देखिए जिस तरह से हमारा ट्रैवलिंग चल रहा है और जिस तरह से हम ट्रैवल करते हैं थ्रू आउट द मंथ एंड थ्रू आउट द ईयर्स, डेफिनेटली कौन से टाइम पे हम कहाँ हैं कुछ भी पता नहीं है. हमको भूख लगी, हम क्या खा रहे हैं, हमने कुछ भी उठा के खा लिया. पीपल्स आर नाउ प्रीफरिंग दैट कि आपके साथ कुछ ऐसा फूड होना चाहिए जो आपको प्रोटीन, कैलोरीज वो टाइम पे सप्लाई करे. एंड दिस इज द फास्ट मूविंग वर्ल्ड. इन दैट केस healthy snacking is definitely acceptable fastly, and right now it is accepting fastly by the people. So when I have definitely I want to share the experience of mine with your product, that कि जब मैंने ये गुड़ चना और मखना वगैरह सब खाया, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर ये गुड़ चना का आप मान लीजिए 50 ग्राम कंज्यूम करते हैं ना, तो आपका एक मील स्किप हो सकता है. एंड डेफिनेटली इट इज 100% हेल्दी. देयर इज नो एडिटिव, देयर इज नो अदर सब्सटेंसेस. हाँ. एंड आप जैसे घर का खाना खा रहे हो ऐसा ही आपको फील हो रहा है. एंड ये माउथ फीलिंग भी है, मतलब जब आप उसका टेस्ट लेते हैं तो आपको अच्छा भी लगता है, बिकॉज आप जब छोटे थे तब से आप ये खाते आ रहे हैं और ये कुछ नया नहीं है. बट डेफिनेटली जिस तरह से आपने उसको प्रिपेयर किया है सात्विकों ने, डेफिनेटली इट इज वेरी लविंग प्रोडक्ट. एंड मैं सबको ये इंसिस्ट करूंगा कि अगर आप कहीं पे भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप ये प्रोडक्ट को जरूर अपने साथ रखिए, बिकॉज इट विल गिव यू लॉट्स ऑफ कैलोरी, और उसके साथ साथ प्रोटीन भी देगा, और उसके रिगार्डिंग जो भी आपके शरीर को जरूरी होगी वो सारी चीजें देगा. तो यस, हेल्दी स्नैक्स की अगर हम बात करें तो इट इज द फ्यूचर. एंड राइट नाउ पीपल बीइंग कॉन्शियस, इट विल गोइंग टू बी एक्सेप्टेड वेरी ब्यूटीफुली. एंड डेफिनेटली जितना आप ऐसा प्रोडक्ट तैयार करेंगे ये लोगों को टच करेगा, एंड उनके रेगुलर पैटर्न के अंदर ये कहीं ना कहीं स्थान लेगा.
So, Amit ji, जैसे we have observed that I mean with the right nutrition, also exercising and yoga is very important. And now, I mean, I have since now known you personally. You are also, I mean, following yoga on an everyday basis. So, if you can share your experience around your yoga practice and how would that help the budding entrepreneurs also, because exercising now and yoga is a part of life now. डेफिनेटली धवल, दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, तो जैसे आपने योगा का पूछा ना, तो मुझे आपकी स्क्रीन के ऊपर दो चीजें दिख रही है। एक तरफ एक लड़की योगा कर रही है एंड दूसरी तरफ लिखा है सात्विक फूड योगा, Yeah. एंड इट इज टू अपीलिंग दैट आपने योगा को फूड के साथ कनेक्ट किया, और ये बहुत जरूरी भी है। डेफिनेटली अगर मैं योगा की बात करूँ तो बहुत टाइम से मैं योगा के साथ जुड़ा हूँ, और राइट नाउ आई एम डूइंग थ्री काइंड ऑफ द योगा: मंडूकासन, शीर्षासन एंड सूर्य नमस्कार। तो बड़ा ऑब्वियस है, मेरा पर्सनल अगर मैं एक्सपीरियंस बोलूं, क्योंकि योगा के बारे में हम सब बहुत जानते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से इंडियन गवर्नमेंट ने जिस तरह से योगा को प्रमोट किया है और आज पूरी दुनिया के अंदर योगा प्रचलित हुआ है, डेफिनेटली योगा डे हमसे प्रेरित होके तैयार किया गया है। तो इन दैट केस आप ज्यादातर तो इन्फॉर्मेशन आपके पास है ही, लेकिन अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो देखिए, मैंने ये महसूस किया कि जब भी आप कोई डायलेमा में होते हैं ना, कोई डिसीजन को लेने के लिए, एंड इन दैट केस अगर आप अर्ली मॉर्निंग योगा के अंदर उस डायलेमा को लाते हैं, और आप जब ये सोचते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इन दैट पीसफुल मैनर एंड पीसफुल एटमोस्फियर आपको ऑटोमेटिकली एक आपके कॉन्साइंस से आवाज आती है कि यस, ये प्रिफरेबल रास्ता है या तो ये प्रिफरेबल सॉल्यूशन है। तो मैंने योगा को हमेशा इस तरह से देखा है कि ये एक तो स्ट्रेस रिलीवर है। अगर आपको बहुत स्ट्रेस है तो डेफिनेटली ये स्ट्रेस रिलीवर है। अगर यंग एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, तो आज के टाइम में जिस कंपटीशन से आप गुजर रहे हैं, बट ऑब्वियस डेली बेस पे आपको कुछ ना कुछ चैलेंजेस आती है, एंड यू हैव टू फाइट विद देम। या तो इन दैट केस योगा विल गोइंग टू हेल्पफुल टू यू। एंड डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स है, जिसमें से खास तौर पे अगर कोई दो बेनिफिट्स है तो जो मुझे लगते हैं, एक तो योगा आप अगर मॉर्निंग में 30 मिनट्स या 45 मिनट के लिए करते हैं, तो आप पूरे दिन ना लाइट वेट फील करते हैं और हेल्दी फील करते हैं। एंड दूसरा ये है कि आप स्ट्रेस को रिलीज कर पाएंगे योगा के थ्रू, क्योंकि जब आप योगा करते हैं ना, तो बड़ा ऑब्वियस है कि आपका दिमाग शांत होता है, आप एक चांटिंग करते हैं एंड आप एक पीसफुल मैनर में आ जाते हैं, तो आप अपने आप को एक कंफर्ट जोन में पाते हैं कि भाई यहाँ पे मैं अपने आप से बात कर सकता हूँ, जहाँ पे आप अपने आप को मतलब समझ सकते हैं, और उसके साथ आप आई थिंक ये इंडियन ब्रांड्स, मतलब जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स है, ये उन्हें बड़ा ही यूजफुल रहेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब आपने भी एक्सपीरियंस किया, डेफिनेटली entrepreneurship is of course a difficult task. So every day we come across, ट्रू, I mean, stressful situations during the day and all. So I think yoga can really help on that. हेल्प, रियली हेल्प, uh, नो डाउट। to my next question around this. So I mean, since you are training various entrepreneurs around it, so how, I mean, what advice would you like to give someone who wish to now start into the international market? I mean, what point should they consider while initially targeting the countries where should they start their exports with? Definitely, the very good question, and definitely I want to answer it perfectly, because somewhere अगर ये एक आप परफेक्ट मैनर में काम करते हैं ना, तो इट विल बी मोर इजी टू रीच टू द कस्टमर्स इन द फॉरेन कंट्रीज। या so let me give you the basic idea about it, that you see different kind of the products available with us, and what my experience is with medical, surgical, disposable and food product. When I'm talking about the disposable product, medical, surgical product, so definitely these are the general acceptable product. आप दुनिया के कोई भी कंट्री में इसको बेचे, अगर मेरे पास गैमजीरोल है, तो गैमजीरोल is the one kind of the absorbent of different things from your body, which is outing liquid based on liquid. या तो ये क्या होता है कि जब आपको वाउंडिंग को क्लियर करना होता है, तो हम जनरली ये गेमजीरोल यूज करते हैं। तो आपको अगर अफ्रीका के अंदर लगा हुआ है या आप अमेरिकन और आपको लगा है, तो गेमजीरोल इज रिमेन सेम, इसमें कोई कैटेगरी नहीं आती। बट यस, डेफिनेटली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फूड, इट हैज अ लॉट्स ऑफ कैटेगरी। सो लेट मी गिव यू द रियल टाइम एग्जांपल ऑफ माइन ओनली, कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया हुआ है और मुझे क्या लगता है इसके अंदर। देखिए, व्हेन आई हैव स्टार्टेड वर्किंग विद द कोको प्रोडक्ट, कोको हाई प्रोडक्ट, अब ये हमारा ना थोड़ा हाई टिकट साइज प्रोडक्ट है, तो इसका लोकल मार्केट के अंदर जो वैल्यू है ना, वो 99 रुपीज है। तो आप समझ सकते हैं कि 99 रुपीज में अगर आप कोई प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो ये हाई टिकट वैल्यू है।
एंड जनरली ये डायरेक्टली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो Right. आप जब कोई प्रोडक्ट को फूड सेक्टर के अंदर पर्टिकुलरली सिलेक्ट करते हैं या तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो पहली बात आपको ये समझना होगा कि आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू एंड उसके कंटेंट के हिसाब से, इसकी क्वालिटी के हिसाब से कौन सा मार्केट प्रेफरेबल होना चाहिए। अब देखिए, मेरा जो प्रोडक्ट है मैंने आपको बताया उस तरह से, अगर वो हाई टिकट वैल्यू प्रोडक्ट है तो हमको ये मार्केट सिलेक्ट करना पड़ेगा जहां पे लोग इसको खर्च कर पाए या तो उसको परचेज कर पाए, उसके पास True. इतना पैसा होना जरूरी है। एंड सो व्हाट आई हैव डन, पहले तो ये मार्केट का स्टडी किया कि हम कौन से मार्केट के थ्रू आगे बढ़े, एंड देन वी हैव सिलेक्टेड यूएई एज द फर्स्ट मार्केट। यस, अब देखिए, यूएई को सिलेक्ट करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन जो मैंने फाइंड आउट किया और जो स्टडी किया वो ये था कि गल्फ कंट्रीज जितने भी है ना, 7 कंट्रीज गल्फ के, अब देखिए हर एक क्लस्टर ऑफ कंट्री की एक खुद की मतलब उनकी एक पैटर्न होती है। अब देखिए, उनका Right. लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा होता है, उनका फूड फूड कंजम्पशन एक जैसा होता है, उसके अलावा उनके जो डिफरेंट पैरामीटर जैसे संस्कार हो गया तो उनका रिलीजन, ये ऑलमोस्ट सेम जैसा होता है। अब देखिए, ये जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उनके अंदर ज्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो मुस्लिम पॉपुलेशन का अपना एक स्टांस है, उनका अपना एक जेस्चर एंड पोस्टर है एंड अपना एक फूड है। तो Right. अगर मैं इस मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को बेचना चाहता हूं तो आई हैव टू चेक इट आउट दैट कि मेरे प्रोडक्ट के रिसेंबल कौन सी प्रोडक्ट बिक रही है और True. उसका क्या स्केलेबिलिटी है। तो True. पहली चीज तो ये कि आप इसको स्टडी करें। सेकेंडली, आई हैव फाउंड दैट कि दिस इज द मार्केट ऑफ 9 करोड़ पीपल। अब मैंने ये सोचा कि भाई मेरी कोको जो चॉकलेट ड्रिंक प्रोडक्ट है उसको कौन सीप करेगा। आई फाउंड दैट कि मुझे टारगेट करना है 15 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स के लोगों को। Right. बाकी जो मेरा एरिया है वो इतना वास्ट नहीं है। सो आई फाउंड दैट डेमोग्राफिकली देर आर टोटल 2.5 to 3 करोड़ पीपल जो ये एवरेज वी कैन से एज में आते हैं, Sure. एंड ये मेरा कंज्यूमर है, तो डेफिनेटली इट इज द ह्यूज मार्केट टू बी फोकस्ड। एंड देन वी हैव particularly launched this product in this market with their requirement and their taste। तो हमने क्या किया, पहले उनके मार्केट से जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल थी माइलो एंड नेस्ले की, उनको टेस्ट किया और उसके रिगार्डिंग उसके जो पैरामीटर्स थे, लेबलिंग वगैरह, उसको चेक करने के बाद हमने प्रोडक्ट को उस बिहाफ में तैयार किया एंड देन उस मार्केट के अंदर रिप्रेजेंट किया। एंड डेफिनेटली ये सारी प्रिपरेशन करने के बाद लास्ट में आता है सर्टिफिकेशन। बिकॉज अगर आप कोई भी मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो सर्टिफिकेशन जो उनके मार्केट की रिगार्डिंग जरूरत है ये आपको प्रेजेंट करने होंगे, उसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। सो 3 to 4 पॉइंट्स जो मैं यहाँ पे एक बार उसको समराइज करना चाहूंगा। द फर्स्ट इज अबाउट योर प्रोडक्ट क्वालिटी, बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी परचेज पावर ऑफ योर मार्केट। क्योंकि अगर वो हायर क्वालिटी प्रोडक्ट है और बांग्लादेश में बेचना चाहते हैं तो वो बिकेगा नहीं क्योंकि आपका कंज्यूमर वहां पे नहीं है। Sure. उसके अलावा जो मार्केट में आप बेच रहे हैं वहां पे डेमोग्राफिकली आपका कितना मतलब पॉपुलेशन है। एंड चौथे नंबर पे आता है सर्टिफिकेशन जो आपको रिप्रेजेंट करना होगा आपकी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। सो दीज आर द बेसिक थिंग। अदर देन दैट देर आर सेवरल थिंग्स टू बी डिस्कस, बट डेफिनेटली कभी हम डिटेल में बात करेंगे तो मैं आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा, बट दीज आर द Sure. बेसिक स्टेप। Sure, sure. So, I mean, once a product is launched in a particular market, so of course there are, I mean, there is offline segment also, there is online segment also. So, what is your take on the Yeah. increasing scope of the online market globally now? I think are you talking about the e-commerce? Yeah. That's right. अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो आप देखिए पैंडेमिक के बाद एक डेटा के हिसाब से 2019 और 2020 ई कॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरेज 33% बढ़ा। 33%। आप ये बोल सकते हैं कि ऑनलाइन और वी कैन से ई कॉमर्स के लिए पैंडेमिक जो है ना वो बहुत लाभदायी रहा। एंड बट ऑब्वियस माय फ्रेंड, देखिए आज जब टेक्नोलॉजी हैंडी हो गई है और जब लोग घर पे बैठे बैठे सारी चीजों को ऑर्डर कर सकते हैं तो क्यों हमको बाहर जाना और क्यों खाली अपना टाइम बिगाड़ के उसको प्रोडक्ट को लेके आना और घर पे आके उसको यूज करना। बट ऑब्वियस जब हम ऑनलाइन मंगवा सकते हैं तो एक बार में हम उनको मंगवा लेंगे, मेरा टाइम भी बचेगा और मुझे फूड क्वालिटी जो है वो भी एश्योर मिल जाएगी, या तो जो भी प्रोडक्ट मैं बट ऑब्वियस परचेज करना चाहता हूँ। तो माय फ्रेंड, अगर मैं बात करूं डेफिनेटली ई कॉमर्स के लिए अपकमिंग जो फ्यूचर है उसका स्काई इज द लिमिट ओनली। ओके, आई एम टेलिंग यू, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा और जैसे जैसे लोग हैबिचुएटेड होते जाएंगे डेफिनेटली मॉडर्न मार्केट प्लेस जो है ना वो आगे के टाइम में सबसे बड़ा वी कैन से प्लेटफॉर्म होगा जहां से कंज्यूमर परचेज करना चालू करेंगे। एंड डेफिनेटली अगर आज के टाइम में आपने ऑनलाइन मार्केटिंग को या तो फिर वी कैन से ई कॉमर्स को फोकस नहीं किया तो यू कैन नॉट डू द बिजनेस प्रिफरेंशियली बिकॉज दिस इज व्हाट द नीड ऑफ दिस टाइम। You have to be represent
on e-commerce platform. So, I mean, going forward, of course, e-commerce has become extremely important, irrespective of the industry, right? I mean, be it food or any other consumable also. Yes, true. So great. True. Down to my last question for the session now. I mean, now since when a person decides ultimately that they want to launch into the international market, so what advice would you like to give to the Indian entrepreneurs? That, I mean, what should they keep in mind while reaching out to the potential customers in the global market? Be it, I mean, a buyer of retail store or maybe a potential distributors. गॉट इट धवल. बेसिकली देखिए, ये इंडियन जितने भी मैन्युफैक्चरर या तो सेलर है ना, उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है, हाउ टू रीच टू द कंज्यूमर. हम बायर कैसे ढूंढे. यस, देखिए इसका जो मैं आंसर देना चाहूंगा ना, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड देना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और मुझे लगता है कि ये एक एकदम कंप्लीट प्रैक्टिस है. अब देखिए, इसके अंदर और कोई पैरामीटर्स नहीं है कि इसमें कोई चमत्कार है, ये ओवरनाइट का काम है कि किसी ने जादू की छड़ी आपके ऊपर घुमा दी और आपको बायर मिल गए. नो वे. यू सी, इंडियन जो जो सेलर्स है ना, उसका एक पर्सपेक्टिव ये होता है कि कोई आके मुझे बायर का डेटा दे, मैं उनको कनेक्ट करूं एंड उसके बाद मैं अपना बिजनेस एंड ग्रो करूं. आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट द प्रेफरेबल वे. आपको कोई अगर बायर देगा और आप उस बायर के साथ कनेक्ट करेंगे, तो आप उसमें दो ही चीज कर सकते हैं. आई एम टेलिंग यू, पहला ये कि आपका जो कॉम्पिटिटर ने जो प्राइस से मतलब माल बेचा है ना, उनसे कम प्राइस में आप उसको ऑफर करें. दिस इज व्हाट यू कैन डू. एंड सेकेंडली, जो भी आप क्वालिटी उनको मिल रही है, उसे डिटेरियोरेट क्वालिटी दीजिए और प्राइस सस्ता करें. और ये दोनों केस में ये अनहेल्दी कंपटीशन है. आई एम टेलिंग यू, इसमें कोई हेल्दी कंपटीशन नहीं है. और इसमें हम अपने ही इंडियन प्रोडक्ट्स का कहीं ना कहीं जो वैल्यू है ना, उसको डिग्रेड कर रहे हैं. सो मुझे लगता है कि ये प्रेफरेबल रास्ता नहीं है. सो लेट मी गिव यू द बेसिक स्टेप हाउ टू रीच टू योर बायर्स. या सबसे पहली बात तो ये समझिए कि आपकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी या तो आपकी जो प्रोडक्ट कैटेगरी है ना, पहले तो आप उस डोमेन के बायर्स को कनेक्ट करना चालू करें. आई एम टेलिंग यू धवल, जनरली लोगों का क्या सोचना होता है कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स का, कि मैं अपनी प्रोडक्ट बाहर के कंट्री में बेचना चाहता हूँ. एक काम करिए, इंडिया के अलावा वर्ल्ड के जितने भी अलग अलग कंट्री के ईमेल आईडी है ना, उसको इकट्ठा करिए एंड सबको मेल फॉरवर्ड करिए. उनको लगता है कोई ना कोई तो मेल का रिवर्ट जरूर देगा. बट आई वांट टू आस्क यू दैट कि अगर आपको पेंसिल खरीदना है और आप मेडिकल स्टोर पे जाके बोलेंगे भैया मेरे को पेंसिल दे दीजिए, सो क्या वो आपको पेंसिल दे सकता है? क्या ये प्रिफरेबल है कि आप मेडिकल स्टोर पे जाके उसको पूछे? दिस इज व्हाट वी आर डूइंग माय फ्रेंड. व्हाट हैपनिंग, आई एम डूइंग द वर्क इन फूड प्रोडक्ट एंड आई एम रीचिंग टू दोज हु आर वर्किंग इन द मेडिकल सर्जिकल प्रोडक्ट. नाउ व्हाई ही विल गोइंग टू गिव मी द आंसर? उसको क्या कंसर्न है? कुछ कंसर्न ही नहीं है. और बट ऑब्वियसली उसका पूरा डोमेन जब डिफरेंट है, तो मैं उसको अप्रोच करके भी कुछ फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा इसमें. तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अलग अलग लोगों की जो भी कैटेगरी होती है ना इंपोर्ट करने की, या तो डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे वो जो प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, या वहां की वो एजेंट्स है, या तो वहां के वो रिसेलर्स है, आप उनकी कैटेगरी को पहले चेक करिए. आपका बायर आपकी कैटेगरी से है तो आप उनको प्रोडक्ट अप्रोच कर पाएंगे. अगर आप अदर कैटेगरी के लोगों को अप्रोच करेंगे, आई एम टेलिंग यू, यू विल नॉट फाइंड आउट द रिजल्ट एंड यू विल बी डीमोरलाइज विद दैट कि हमने इतने लोगों को कांटेक्ट किया और कोई मुझे रिवर्ट नहीं मिला. पर रिवर्ट कैसे मिलेगा जब आपने पर्टिकुलर लोगों को कनेक्ट ही नहीं किया है? तो दिस इज व्हाट द फर्स्ट थिंग कि आपकी कैटेगरी के जो बायर्स होंगे, आप उनको पहले तो सिलेक्ट करिए. सेकंड नंबर पे एक क्वालिटी के रिगार्डिंग भी मैंने बहुत सारी चीजों को फोकस किया है. देखिए, क्वालिटी जो होती है ना, इसके रिगार्डिंग एक्सपोर्टर या तो एक्सपोर्ट वर्ड जब हमारे दिमाग में आता है तो हमको ये लगता है ऑलवेज कि मुझे हमेशा एक्सपोर्ट के अंदर अच्छी क्वालिटी ही एक्सपोर्ट करनी चाहिए. बट दिस इज नॉट द ट्रू थिंग. आई एम टेलिंग यू, व्हाट इज एक्सपोर्ट? Like you are selecting a number of markets and these all the different markets have their own per capita income and GDP. अब अगर मैं बात करूं नेपाल और म्यांमार की, और मैं वहां पे अगर मान लीजिए मेरा 99 रुपीज वाला प्रोडक्ट बेचने की ट्राई करूंगा, मैं 5 साल 10 साल भी काम कर लूंगा ना, तो भी मुझे वो मार्केट नहीं मिलेगा. तो क्या होता है, देखिए जैसा आपका मार्केट है ना, वैसा प्रोडक्ट क्वालिटी आपका होना चाहिए. लाइक आप चाइना को देखिए, वो ऐसा नहीं है कि हर एक मार्केट को एक ही क्वालिटी प्रोडक्ट देता है. नो, जैसा मार्केट वैसा प्रोडक्ट क्वालिटी. सो देयर आर द थ्री काइंड ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी: सुपीरियर, मीडियोकर एंड वी कैन से इंफीरियर. तो पहले दूसरी बात ये कि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से अपना मार्केट चूज करें, या तो मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट की क्वालिटी चूज करें. द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैं बहुत ही मतलब प्रिफरेबली सबको ये बताता हूँ और इंसिस्ट करता हूँ, इज दैट
देखिए, आपका इंपोर्टर जब आपकी प्रोडक्ट के अंदर, अगर ये प्रोडक्ट इनोवेटिव है, जब हम फूड प्रोडक्ट की बात करते हैं तो धवल आपको पता होगा कि फूड में बहुत सेगमेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की, तो बट ऑब्वियस वेजिटेबल एंड फ्रूट ये जनरल प्रोडक्ट है, इसको आपको बताने की किसी को जरूरत नहीं है या तो चखाने की जरूरत नहीं है। ये Right. सबको पता है कैसा आता है और कैसे बिकता है। बट Right. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिकली प्रिपेयर्ड फूड, जैसे कि Mm-hmm. आप जिस इंडस्ट्री में और मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ और जो हम लोग जो बनाते हैं, डेफिनेटली इन दैट केस अंडरस्टैंड माय वर्ड, आपके इंपोर्टर को जब आप अप्रोच करते हैं ना, तो ये इंपोर्टर को पहले पता होना चाहिए कि मैं कौन सी प्रोडक्ट को सुन रहा हूँ। Right. लाइक इसका बेस क्या है। Uh-huh. इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि आप अपनी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अपने इंपोर्टर को पहले नॉलेज दीजिए, उसको Mm-hmm. एडुकेट करिए कि भैया देखो हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस कैटेगरी में आता है, ये आप किसको बेच पाएंगे, जिनको मान लीजिए कि हेल्दी स्नैक की रिक्वायरमेंट है, और उसके अलावा अल्टीमेटली आप इसको बेचना चाहते हैं तो आपको कहाँ पे इसको प्लेस करना होगा। ये जब आप उनको बताएंगे और उसके ऊपर जब वो रियल टाइम काम करेगा, तब जाके वो अपनी आपकी प्रोडक्ट को अपने मार्केट में प्रेजेंट कर पाएगा। सो दिस इज Absolutely. व्हाट हैपनिंग नंबर ऑफ टाइम विद अस, कि सामने वाला बंदा प्रोडक्ट को समझ ही नहीं रहा है, वो उसको पैकेजिंग लगा बहुत ब्यूटीफुल है, पैकेजिंग देखा वो अट्रैक्ट हो गया और उसने मुझे पूछा कि यस आई वांट टू इंपोर्ट इट। जब मैंने उसके साथ डिस्कशन किया तो उसको बाद में लगा अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है मेरे मार्केट में बेचना। ऐसा उसको क्यों लगा है, क्योंकि उसको प्रोडक्ट ही नहीं पता। सही तो बात ये है। मेरा काम है कि मेरा प्रोडक्ट उसको समझाना, और उसको मैं ये भी बताऊं कि देख तुम्हारे मार्केट में ये प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, उसके लिए आपको कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सो वी Right. हैव टू नर्चर द इंपोर्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फूड प्रोडक्ट जो एथनिक इंडियन फूड है, अगर आप उसको मार्केट को टच करवाना चाहते हैं और कंज्यूमर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको पता है कि ये प्रोडक्ट किसको बेचना है, और ये नॉलेज आपको डायरेक्टली उसको पुट आउट करना पड़ेगा। एंड द Right. लास्ट बट नॉट लिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट, देखिए सिस्टमेटिक मार्केटिंग ये बहुत ही जरूरी है। Mm-hmm. मार्केटिंग भी अगर आपने अंधाधुंध किया है तो उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला। एंड Right. व्हाट इज सिस्टमेटिक मार्केटिंग? यू अप्रोच दोज पीपल हु आर वर्किंग इन योर डोमेन, you Mm-hmm. approach those people who are consumer of your product, and you approach those people who are right now want to import your product। तो डेफिनेटली उनके प्रोफाइल से ये चीजें समझ में आती है, एंड जब आप उनको कनेक्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप पर्टिकुलरली अपनी प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से उस मार्केट के अंदर प्रिवेल कर पाएंगे। बट यस, एट द लास्ट द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज दैट बी पेशेंट माय फ्रेंड। एक्सपोर्ट जितना हम सुनते हैं पिक्चर में जो हमको दिखाते हैं उस तरह से नहीं है। बट ऑब्वियस पिक्चर के अंदर एक्सपोर्टर बहुत पैसे वाले होते हैं, लेकिन रियल टाइम एक्सपोर्ट के अंदर यू हैव टू बी पेशेंट, क्योंकि ये बहुत ही पेशेंट का काम है कि आपको अपना प्रोडक्ट सामने वाले के डोमेन में एंटर करवाना, उसको उसकी रेगुलर लाइफ के अंदर इनपुट देना, एंड देन आफ्टर दे विल गोइंग टू परचेज योर प्रोडक्ट। सो डेफिनेटली माय फ्रेंड्स, मुझे हमेशा ये लगता है एक्सपोर्ट में इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। डबल आई वांट टू से यू दैट कि अल्टीमेटली अगर हम बात करें इंडियन फूड की, आज जो फूड हम प्रिपेयर करते हैं ना, अगर हम उसको ऐसा समझे कि 100% अगर हम फूड प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें से राइट नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग ओनली 18 to 20% फूड वर्ल्ड वाइड। हमारा तकरीबन 80 to 82% फूड ऐसा है जो लोगों को पता ही नहीं है दुनिया भर में कि ऐसा फूड भी इंडियंस बनाते हैं। एंड डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, जब आप उसको मतलब लोगों को जब टेस्ट देंगे ना, तो दे विल गोइंग टू आस्क फॉर दैट प्रोडक्ट, एंड दे वांट टू इंपोर्ट दैट प्रोडक्ट, आई एम टेलिंग यू। एंड Right. आई एम द एग्जांपल ऑफ इट कि मैंने ये देखा है, मैंने दो Mm-hmm. घंटे ये गल्फ फूड के अंदर ऑब्जर्व किया है कि बहुत चाव से फॉरेनर्स जो होते हैं ना, वो इंडियन फूड को टेस्ट करते हैं, दे लाइक इट, दे आर टेकिंग द सैंपल्स विद देम, एंड दे वांट्स टू इंपोर्ट दैट फूड। Mm-hmm. एंड मेरा एक्सपीरियंस जो इंडस फूड की रिगार्डिंग रहा है, शायद मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी इंडस पार्टिसिपेट किया होगा। इंडस फूड के अंदर इंडिया का फोकस जो है गवर्नमेंट की ओर से वो यही है कि वर्ल्ड वाइड टोटल 600 से 800 डिफरेंट कैटेगरी के इंपोर्टर्स को यहाँ पे बुलाते हैं फूड के अंदर खाली। एंड जब आप समझ सकते हैं कि 600 to 800 अलग अलग कंट्री से, तकरीबन 60 to 80 कंट्री से जब इंपोर्टर्स आते हैं, आई एम टेलिंग यू दे लव इंडियन प्रोडक्ट, दे Right. वांट टू इंपोर्ट द इंडियन प्रोडक्ट। एंड जब वो Mm-hmm. टेस्ट करते हैं तो उनको लगता है कि डेफिनेटली ये मुझे इंपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इतना इनोवेटिव प्रोडक्ट हमने नहीं देखा है। Mm-hmm. सो डेफिनेटली द पोटेंशियल इज एंडलेस माय फ्रेंड। बस सिंपल सी बात मुझे ये लगता है कि जो दिखता है वो बिकता है, एंड अभी तक इंडियन प्रोडक्ट इतना दिख नहीं रहा है, जो तब दिखना चालू होगा तो बिकना चालू होगा। Right, right. I think this was really a very detailed and an insightful answer, and I think
I mean, I'm really sure that this would be extremely beneficial for the people who are now planning to launch or scale their product in the international market. So really Definitely, I'm hoping that. awesome. So Amitji, really thank you so much once again for I mean coming on this session, and I mean the kind of responses which you have given have been phenomenal, and really appreciate it once again. Thank you so much. My pleasure, completely my pleasure.